So namaste everyone, and so I hope my voice is okay. The topic today for exploration is peace, and more usually we have heard this name a lot. We have heard about that peace is good and we should have peace in life and all that kind of stuff. But uh, today the topic is more about active peace, not a passive peace जिसमें बहुत ज़्यादा movement नहीं है, एक passive सी शांति है, not that kind of a peace. More like an active peace which invites, if I can say, more life energy into us, which invites more directed life in our journey. So first of all, I would like to ask all of you, why are we here today? So this is a question to all of you, and I would like you to frame it in a few sentences and share it, either by unmuting also is okay, or share it in the chat window. Why are you here today? Because you may have been doing 10,000 other stuff at this moment. What brings you here? So just take a moment and give it a pause. Think about it. Why are you here at this session today? What is the purpose? So either in the chat window or you can unmute and share. Yeah, please, I would like you to share either in the chat window or by unmuting. Why are we here today? To each one of you, what brings you here? What is about the topic that you would want to know or want to discover that brings you here? Yes. मेधा जी, yes. ये पीस का जो इशू है वो तो कंटिन्यूसली लाइफ में चलता रहता है, और मुझे लगता है कि इसका बहुत गहरा रिश्ता है अवेयरनेस से। तो जब हम अवेयर होते हैं एक्टिव लाइफ में, हर मोमेंट एक नया सिचुएशन लाइफ में आता होता है, तो जब तक हम अवेयरनेस होता है। जी, आई थिंक वी लॉस्ट यू मेधा जी। हाँ, सुनाई दे रहा है? आपने बोला जब तक अवेयरनेस होता है, आगे? हाँ, तब तक तो हम हर सिचुएशन को पीस के साथ डील कर पाते हैं। लेकिन जैसे जिस मोमेंट अवेयरनेस चला जाता है, उस मोमेंट फिर पीस भी ड्रॉप हो जाता है। तो हम मेरी क्वेस्ट ये है या मेरी तलाश ये है कि हम उस स्टेट ऑफ माइंड में कैसे पहुंचे जब अवेयरनेस एक बाहर की चीज, कॉन्शियस चीज ना हो जाए, बल्कि आपके बीइंग के अंदर उतर जाए और पीस आपका वे ऑफ लाइफ बन जाए। ये मेरी रिक्वेस्ट। ब्यूटीफुल, या थैंक यू फॉर शेयरिंग। so that peace becomes a way of life, right? Yeah. Okay, thank you. So Birenji is sharing to learn from everyone about their experiences, about what brings peace to them. Okay, but Birenji, this is not about everyone at the moment. What I asked was, what brings you here? That is okay, you want to learn from everyone. What about peace that you want to explore in your life personally? Learning from experiences is happening all the time, will now happen as well, as Medhaji shared her own experience. Why is peace important for you? That is the question. Yeah. Can I go ahead, Monica? Yes, Gurpreet ji. Yeah.
Monica, for me, I agree to Medhaji a lot, and I feel this is one of the most important aspect of life. For me, the most important for the kind of situations that I was exposed to, life situations and circumstances. I found myself highly incompetent in dealing with things, very simple things I couldn't deal with. Now that was, I don't know why, maybe I was that kind. So this is a very strong seeking in me, that anything which can bring that state of mind within me, that state of equanimity, that is my, a very strong ambition, which I, aim to achieve, which I'm sure it's just a process. It's not something that I can be perfect in. But yeah, I want that state of equanimity when things outside, no matter how they are, but I don't lose the balance within. So anything which makes me, more familiar with the subject or anything pulls me like anything. So, Okay. Great. Thank you. So Birenji has further shared how to look inwards and to find my true self and inner peace for myself. So you mean to say, Virenji, that there is a yearning to find peace within the being, and that is why you are here. Great. So, yeah, rest of you, please unmute and share, or you can share in the chat window. Yeah, okay. Let me take this comment. Himanshi ji is saying, so in a normal course of day, the inner peace, calm of the body goes through disturbances. Yes, I know that every time my peace is disturbed, something gets disturbed inside. My health also gets disturbed. Why should uh, why should I let my inner self be disturbed by outside disturbances? Beautiful. So there is a seeking that no matter what up and down may happen outside, my inner peace should be stable, right? Yeah. Yeah, just a second. I'm not able to just have a full view of these things. Okay. Okay. So Taru says, mostly it feels that peace is something that comes to you like it's given or earned and not in my hand much. But the way you have put it, how to invoke and establish peace, seems it's something we can do something about it. Okay. Within my reach. Okay. Okay. Yeah. Perfect. So, anyone else, would you like to share why you are here today? Why peace is important for you, if I may ask? Because this is our session, and the way you want me to steer it, I can steer it that way. Uh, okay. Let me just maximize this first. Um, Great. Yeah. So, हिमांशी जी इज आस्किंग फॉर अ स्टेट ऑफ कांस्टेंट पीस कि अंदर डिस्टरबेंस हो ही क्यों, है ना? बाहर अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं, चलते रहेंगे, वो तो सबकी जिंदगी में है. मेरे अंदर क्यों इतना उतार चढ़ाव चल रहा है? दिस इज व्हाट हिमांशी जी इज आस्किंग. अगेन गुरप्रीत जी सेड अबाउट establishing a state of equanimity inside. Why should I get disturbed about so much happening throughout the day? Again, Medha ji says that I want to have peace as a normal way of life, not something which is only found in meditation, for example, for 1 hour. Aradhana ji is saying the purpose of life is to be still peaceful. In our day to day life, we say we are at peace by such and such a situation. Okay, so for example, I may sit in meditation and I may feel, okay, this brings me peace. I may do some art and that says, that this brings me peace. I may go for a walk, that brings me peace. So we are in peace depending on the external situations. This is what Aradhana ji is saying. That so called peace goes away quickly. So that is not peace. Beautiful. So I am here to find out what is that peace which should not go away, whatever the situation is. How to find that stillness and quiet
within which is my purpose for being, that is my purpose for being here. Beautiful. So yeah, I think if you are able to see, the intensity, the seeking in all of us is in the same direction. We have put it in our varied ways, coming from our unique experiences, but the seeking is intense, that I want peace which should be immobile, which should be not wavering peace. I want that kind of a constant peace. Okay. Himanshi shares once again that peace is important to me because my state of being sets the rhythm of my environment. Beautiful. So whatever you are, you kind of spill it out. So there are a few more participants, Rashmi, Ruchika, and Diana. If I can ask you to share shortly why are you here, it will be so nice to hear from you. Feel free to unmute and share. So both the things are okay. Yeah. I'm Medha. Rashmi is my student and I request you कि तुम हिंदी में भी बात कर सकती हो कि तुम स्टेशन में क्यों हो, पीस तुम्हारे लिए हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हिंदी भी बिल्कुल, totally up to it. Yeah. Rashmi, you can share. Okay. So yeah. Yes Rashmi, हाँ बताइए. Just a minute. Okay. Hello. हाँ जी रश्मि जी. हाँ. Peace is important to be yourself. So that's why I'm here. क्योंकि हम जैसा हम जीना चाहते हैं या जैसे जिंदगी हम जीना चाहते हैं, हम कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ मतलब नेगेटिव थिंग्स ग्रास्प करते हैं. So they pull us away. So that's why I'm here to see what is peace. जी जी, बहुत सुंदर. Thank you रश्मि. Thank you. Yeah. So rest of you who maybe are not willing right now, please feel free to intermittently share whatever you are wanting to ask. Or yeah, some real me 5i has raised hand, so would you like to go ahead? लक्ष्मी जी अब आप म्यूट कर लीजिए. हाँ थैंक यू. ठीक है, सो आई विल कंटिन्यू विद द सेशन. मैं आगे बढ़ती हूँ और हिंदी और इंग्लिश दोनों का हो सकता है एक प्रयोग हो बीच बीच में. मैं कोशिश करूँगी हिंदी में ज़्यादा बोलूँ, बट इंग्लिश विल ऑल्सो कम इन बिटवीन. और दूसरा ये है कि जब भी आपको लगे कोई प्रश्न है, कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, कोई कंसर्न है जो क्लियर नहीं है, तो आप चैट विंडो में लिख सकते हैं बीच में, या फिर उसको आप शेयर कर सकते हैं अनम्यूट करके. ओके. So today, why am I here? Why this is important for me is because I have been through really phases in life, a very dark phase in life, I would say, that really disturbed me a lot. A lot of disturbance and restlessness that I found within my being. So होता क्या है कि नॉर्मल लाइफ में जब हम जी रहे होते हैं, एक बैकग्राउंड नॉइज बनी रहती है. एक बैकग्राउंड चैटर, बैकग्राउंड रेस्टलेसनेस है. तो उसमें हम किसी ना किसी तरीके से काम चला लेते हैं, चल जाता है काम. थोड़ा ध्यान इधर भटका लिया, थोड़ा ध्यान उधर भटका लिया. लेकिन जब एक ऐसी परिस्थिति आती है जिसमें बहुत ज़्यादा कुछ बढ़ जाता है, डिस्टर्बेंस इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि अब कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, क्योंकि शांति तो सभी चाहिए, सभी को चाहिए शांति. छोटे से छोटे और बड़े से बड़े को शांति चाहिए. और ये बताता है हमें कि शांति एक्चुअली में हमारा स्वभाव है. कोई भी बंदा ज्यादा टाइम के लिए अशांत नहीं रह सकता. चाहे वो किसी और चीज पे डिपेंडेंट होकर शांति खोजेगा, लेकिन खोजेगा जरूर. स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता कि शांति महत्वपूर्ण है, उसके पीछे भागिए. बट हमें पता है, मुझे पता है मेरी शांति बहुत जरूरी है. लेकिन होता क्या है कि लाइफ के, जिंदगी के चलते चलते हम उसको
महत्व देना कम कर देते हैं, शांति को महत्व कम कर देते हैं। दूसरों को खुश करना, समाज को खुश रखना, माता पिता को खुश रखना, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस ले लेता है, महत्व ले लेता है। और उसके चक्कर में हम अपनी शांति को इतना जबरदस्त कॉम्प्रोमाइज करते हैं कि इतनी दूर निकल आते हैं उस शांति से कि जब तक वो एक बहुत बड़ा विकराल रूप नहीं ले लेती भसड़ का, कि इतनी भसड़ हो गई जिंदगी में कि अब तो शांति चाहिए ही चाहिए, अब नहीं तो यू कैन एक्चुअली बिकम रियली हैव डेवलप साइकोलॉजिकल इश्यूज। तब हम कोशिश करते हैं उसको अटेंशन देने की कि अब तो देखना पड़ेगा, अब तो सोचना पड़ेगा। तो जब ऐसा भसड़ वाली परिस्थिति आती है जिसमें बहुत गंभीर समस्या हो गई है, अब तो शांति पे ध्यान देना ही पड़ेगा, वो एक बहुत ही सुंदर परिस्थिति है कि हमारे जीवन में आई है। अदरवाइज हमें पता भी नहीं लगता और हमें पूरा का पूरा मनुष्य जीवन, जिसे अनमोल कहा गया है, वो एक अशांत रूप में जीते जाते। अपने जो ट्रू स्वभाव है हमारा, जो हमारा स्वरूप है, शांत स्वरूप है, उसके अगेंस्ट। तो एक तरह से हम अधर्म में पूरी जिंदगी बिता देते हैं और पता भी नहीं लगता। और होता है, बहुत लोगों के साथ होता है, मैं कहूंगी अधिकांश जनता के साथ यही होता है हमारे साथ, कि हम एक पूरी जिंदगी एक बैकग्राउंड अशांति में गुजार देते हैं और शांति की तलाश हमें परेशान करती ही नहीं है। तो दो चीजें हो सकती हैं, एक तो वो जिसको शांति मिल गई वो शांत रह सकता है, एक वो जिसने पथ पे चलना शुरू कर दिया। अगर कोई दूसरे टाइप का बंदा कह रहा है कि मैं शांत हूं, अभी मैं अंदर से भी अपने टच में नहीं हूं, लेकिन मैं शांत हूं, मेरी जिंदगी में कोई तकलीफ नहीं है, तो ये एक एक्चुअली में बहुत गंभीर समस्या है। तकलीफ होनी चाहिए, जिंदगी में तकलीफ होनी बहुत जरूरी है कि मैं अशांत हूं, मुझे बहुत तकलीफ है। अगर हमने ये पहचाना ही नहीं कि मैं अशांत हूं और मुझे तकलीफ है इस अशांति से, तो हम शांति के पीछे जा ही नहीं सकेंगे। तो हम में से वो जो ये पहचान पाते हैं कि यस देयर इज सम डिस्टर्बेंस विद इन मी एंड आई डू वांट टू करेक्ट इट, आई थिंक दैट्स एक्चुअली डिवाइन ग्रेस इन वर्क, इन एक्शन, that we are getting to know that yes there is a shanti in my life and I want to move towards shanti. So मेरे साथ ऐसा ही हुआ, जो मैं आपको बताना शुरू किया था कि a very dark phase came into my life where it was full of disturbance, and that was the very period, owing to the pain and suffering of that period, I touched even deeper depths of peace within my being. And that is what today's session is based on, in the sense that the importance of peace that I realized during that phase, I never realized throughout my life. How peace can actually give a direction to life, not a passive peace कि बस शांत हो गए और कुछ नहीं करना लाइफ में, not a passive peace. So that is what I'll be talking about today. और आज मैं कुछ information, कुछ आपसे जो शेयर करूंगी, वो श्री औरोबिंदो और मदर ने जो पीस पे महत्व दिया है, हाउ मदर टेल्स अस टू इन्वोक पीस इन द बीइंग, हाउ दिस कैन बी प्रैक्टिकली डन, वो उस बेसिस पे मैं थोड़ा शेयर करूंगी। हो सकता है कुछ उनके वर्ड्स भी मैं आपसे शेयर करूं। तो इमेजिन कीजिए कि एक कमरा है और उस कमरे में बहुत, एक तरह से कहूंगी, एक बैकग्राउंड नॉइस चल रहा है। उस कमरे में अभी एक कोई टॉक होने वाली है और उस टॉक को सुनने के लिए बहुत सारी ऑडियंस बैठी है, और वो ऑडियंस में बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, तो आपस में बतिया रहे हैं जब तक टॉक नहीं शुरू हो रही। सो देयर इज अ लॉट ऑफ chaos in life in that hall. Now if I take this stick, हाथ में एक डंडा लेके अगर मैं एक एक जने को चुप कराने बैठूं कि चुप हो जाओ, टॉक शुरू होने वाली है, थोड़ा माहौल बना के रखो, तो मैं नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि 1000 लोग हैं। 1000 लोग को एक बंदा इधर जाएगा तो दूसरा उधर से शुरू हो जाएगा। अब होता क्या है कि थोड़ी देर में हाँ, वीडियो देख नहीं पा रही क्योंकि वीडियो है नहीं रियलमी जी, अभी आप सिर्फ आवाज सुनिए, वीडियो नहीं है। हाँ जी, और कोई प्रश्न हो तो, कोई क्वेश्चन हो तो आप इसमें डाल दीजिएगा, चैट विंडो में टाइप कीजिएगा। तो एक हॉल है जिसमें बहुत ही जबरदस्त नॉइस चल रही है, वेयर अ टॉक हैज टू हैपन,
और उसमें वो जो एक बंदा है जो छड़ी लेके चुप करा रहा है, वो चुप नहीं करा पा रहा, वो एक जगह चुप कराता है, दूसरी जगह बात शुरू हो जाती है। अब आप इमेजिन कीजिए कि थोड़ी ही देर में एक इंसान आता है जिसमें से शांति टपक रही है, स्टिलनेस टपक रही है। वो जैसे ही इंसान इस कमरे में हाजिर करता है अपने आप को, पूरी की पूरी जो जनता है उसकी तरफ एक तरह से निस्तब्ध आंखों से देख रही है, बिल्कुल अटेंशन में, टू मच इन अटेंशन, एंड सबका चैटर बंद हो जाता है। उसको ये बोलने की जरूरत नहीं पड़ती कि चुप हो जाओ, अब बात करनी है, राइट? दिस इज हाउ पीस कैन एंटर अवर लाइफ. So we all have mental chatter, we all have emotional chatter, we all have nervous restlessness in body. All of us have. It's nothing special about me or you. जब तक एक इंसान है, जब तक एक ईगो है, ये चैटर रहेगा. मेंटल चैटर, इमोशनल चैटर, भावनाओं का उथल पुथल, बॉडी में उथल पुथल बहुत चलेगी. अब उसको हम एक एक करके अगर डंडा लेके बंद कराएंगे दोनों को, कभी एक उधर थॉट आई तो डंडा लेके खड़े हो गए, इधर इमोशन आया तो डंडा लेके खड़े हो गए, तो कब तक करेंगे? नहीं कर पाएंगे ज्यादा देर तक. अब प्रश्न ये है कि क्या हम तैयार हैं पीस को आमंत्रित करने के लिए? क्योंकि अगर मैं तैयार नहीं हूं, अब अगर अभी भी मुझे ये लग रहा है कि वो जो मेंटल डोमेन में चल रहा है, जो मेरे विचार चल रहे हैं, मुझे उसी में रस लेना है, अगर अभी भी लग रहा है कि मेरे को इमोशंस में ही रस लेना है, उथल पुथल में इमोशंस की, अभी भी लग रहा है कि मुझे बॉडी की रेस्टलेसनेस में ही रस चाहिए, तो मैं पीस को आमंत्रित नहीं कर पाऊंगी. मैं पीस को तब आमंत्रित कर पाऊंगी जब मैं उसके लिए तैयार हूं. मैंने बाकी चीजों से उदासीनता हासिल कर ली है कि ना मुझे ये मेंटल चैटर में मिलेगी, ना इमोशनल उथल पुथल में मिलेगी, और ना ही ये मुझे बाकी जो बॉडीली डिस्टर्बेंसेस एंड रेस्टलेसनेस है वहां पे मुझे जीना है. मुझे कुछ और छूना है अपनी जिंदगी में. अगर मैं इस चीज के लिए तैयार हूं, तब ये सेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, प्रैक्टिकली यूजफुल हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता. क्योंकि अगर अभी भी मुझे उम्मीद है उन सारे डोमेन से, तो मैं पीस को आमंत्रित नहीं कर पाऊंगी. तो ये है उसका प्री रिक्विजिट. टू इनवाइट एनी बडी इन योर टेम्पल, you have to clean the temple a bit, you have to prepare it a little bit, ज़्यादा नहीं, बाकी काम पीस करेगी. Okay, so we all know that it is important, and now we want to invite it. How to invite it? What do I do to invite it? As one of you said very beautifully, I think रश्मि जी ने बोला था कि ये बाहर से आता है. हाँ, नेगेटिविटी बाहर से आती है. ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है. ये पॉइंट इसलिए अच्छा है क्योंकि एक्चुअली में ऑल द फीलिंग्स, इमोशंस, सो कॉल्ड थॉट्स एंड विचार, दे ऑल आर एज इफ दे आर इन द एयर एंड आई कैच इट. बाहर से ही आ रहे हैं. अब आपने क्या करना है? हमने ये करना है कि जब भी मुझे कोई दिख रहा है, एक विचार आता हुआ जो मुझे पता है अगर मैं उसमें फंस गई तो ये 1 घंटा मुझे परेशान करेगा. कोई भावना का उमाड़ आता है, एक बहुत जबरदस्त उथल पुथल आती है भावनाओं की, इमोशंस की, तो मुझे वो दिख जाती है आते हुए, और मैं क्या बोलती हूं? मैं इसमें नहीं जाना चाहती. आई यूज माई फ्री विल, अपनी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करती हूं मैं. तो जब मैं पीस को आमंत्रण दे रही हूं, पैरेलली मुझे क्या करना है? अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग, उसको जिमिंग करानी है, इच्छा शक्ति को एक्सरसाइज करानी है, उस मसल को. कैसे? जैसे जैसे मैं पीस को आमंत्रित कर रही हूं, मुझे यह भी बोलना है जो भी अशांत चीजें हैं मुझे वो नहीं चाहिए जिंदगी में. ये थॉट अभी आएगा, 1 घंटा मेरी जिंदगी में घूम के जाएगा, मुझे इसकी अशांति नहीं चाहिए. बहुत पी लिया इसका रस, अब नहीं पीना. एज इफ कि आप पहरेदार बन के बैठ गए अपनी चौखट पे, और अब आप घुसने नहीं दे रहे उसको जो आपको अशांत करता है. सो ऑल द थॉट्स, all the emotions that leave you feeling drained have to be rejected. This is called rejection. नेति, उसकी नेति करनी है.
ठीक है, क्योंकि अब मुझे अपने खेत की देखभाल करनी है, उसकी रखवाली करनी है, उसका ध्यान रखना है। अब आप क्या करेंगे, किसी भी मोमेंट में आप हो सकते हैं, बेशक स्लीप के समय पे या एनीवेयर यू आर सिटिंग ऑल बाय योरसेल्फ अलोन, if possible try also a lying down position before sleep. It's beautiful to do it before sleep. So you are watching the roof, आप पंखे की तरफ आपका मुंह है और आप लेटे हुए हैं जमीन पे या बेड पे या कहीं पे भी या सोफे पे, wherever. Now you have to imagine a complete stillness, a mountain like stillness. Nothing should move. No thought should come. No emotion should go up and down. The body, nervous energy, the prana in the body should be still. Bilkul mountain like. Nothing is moving. You have to do that for at least 5 minutes. 5 मिनट तक करके देखिए और देखिए, do it like an experiment. It's not like a more like a rule. Do it like an experiment. I did it like an experiment, because I had no option left. The beauty was that I had no option left. There was so much of restlessness within me, and I knew that this is not taking me in the right direction. What should I do? What should I do? And then I got to know about this experiment, to call peace in the body, in the mind, in the emotions. ओके तो क्या करना है, हमें कुछ भी हिलने नहीं देना पूरे शरीर में. ना कोई विचार का मूवमेंट होगा, ना कोई इमोशन का मूवमेंट होगा, और ना बॉडी में कुछ भी, बेशक कुछ हिलाने का मन भी कर रहा है उसको भी मैं नहीं हिलाऊंगी 5 मिनट तक. Now slowly as you practice it, what will happen? You will develop an inner eye. एक तो आंख होती है जो बाहर की तरफ देखती है और एक आंख होती है जो अंदर की तरफ देखती है. एक इनर आई आप अपने टच में आएंगे एक इनर आई से, जिसमें आपको पता लगेगा कि मैं अंदर की भी मूवमेंट्स देख सकती हूँ. अभी तो मैं ये देख रही हूँ ना, किसने मुझे परेशान किया, उसने क्या बोला, उसने क्या बोला, अभी मैं ये देख रही हूँ. अब मैं ये देख रही हूँ कि बोला तो जिसने भी, आई डोंट नो, उसके बोलने से मेरे में क्या हलचल हुई. यू आर मोर अवेयर ऑफ दैट मूवमेंट. Now the moment somebody says something to me, what do? I do not move. जो अंदर की तरफ एक आंख है मेरी, वो अंदर की मूवमेंट्स को देख रही है, ऊपर नीचे सारे मूवमेंट्स को देख रही है. अब वो क्या कर रही है, एक एक्सर्ट कर रही है बाहर से एक फोर्स. हिलना नहीं है, जैसे बोलते हैं ना बच्चों को कभी कभी डांट लगा के, हिलना नहीं है, एक पत्ता नहीं हिलना चाहिए, like that. So it's using the mastery of your free will over your own movements. And now what will happen? Whatever decision you will take, whatever that person may have said, whatever situation may have happened, that decision will come out of this inner immobility, inner stillness. Now one can say कि मोनिका जी ये तो सप्रेशन लग रहा है, ये मुझे स्टिलनेस नहीं लग रही. कह सकते हैं, हाँ, फील्स लाइक अ सप्रेशन की डंडा दिखा दिया. बिल्कुल है सप्रेशन, लेकिन ये एक समझदारी वाला सप्रेशन है. कौन सा सप्रेशन है कि मैंने देख लिया 30 साल तक, 40 साल तक मैंने अपनी जिंदगी को देख लिया और इन मूवमेंट्स की ही गुलाम थी. ऐसा कुछ नया तो किया नहीं मैंने. अब मैंने इनके ऊपर मास्टरी हासिल करनी है, इंद्रियों पर कंट्रोल हासिल करना है. और वो तभी होगा जब एक शांति रूपक लेडी, इफ आई कैन से द शक्ति ऑफ पीस, मेरी जिंदगी में आएंगी, उतरेंगी. सो व्हाट डू यू डू इन मदर्स ओन वर्ड्स? हाउ डू यू कॉल पीस? लेट मी जस्ट रीड इट आउट फॉर यू. Yeah. So somebody is asking mother and Sri Aurobindo, I told you that I'll be referring to them. How can we establish a settled peace and silence in the mind? So this is a question being asked to the mother. First thing what mother says to that sadhak is,
First of all, you must want it. And this was the first thing that we discussed. क्योंकि अगर मुझे अभी लग रहा है कि मेरे लिए बाकी चीजें ज्यादा जरूरी हैं शांति से, तो नहीं मिलेगी, बिल्कुल भी नहीं मिलेगी. Okay? So this is the first thing I have to ask. Do I really want it? Or do I want arguments at the moment, more bhasad at the moment? First of all, you must want it. And then you must try and must persevere. Continue trying. क्योंकि ये अभ्यास की तरह है ना, जैसे कोई जिम जाते हैं, तो जिम जाके पहले दिन में तो हम बहुत बढ़िया जिमर बन नहीं जाते, पहले दिन में तो मसल बहुत स्ट्रांग हो नहीं जाती. उसी तरीके से है ये. पहले करेंगे, दूसरी बार करेंगे, तीसरी बार करेंगे, धीरे धीरे इट बिकम्स अ वे ऑफ लाइफ. अगर अब मेरे पास पीस नहीं होगी, जैसे भी हल्की सी डिस्टर्ब होगी, तो मुझे इमीडिएटली पता लग जाएगा कुछ ठीक नहीं है मामला. देन इट बिकम्स अ वे ऑफ लाइफ. ठीक है. नाउ अनदर फर्दर मदर सेज, you sit quietly and then instead of thinking of 50 things, you begin saying to yourself, peace, 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 calm, peace. अब देखिए होता क्या है, हम सब पढ़े लिखे लोग हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ चुके हैं. ये जो चीज हम डिस्कस कर रहे हैं आज, ये देखने में बहुत ही आसान लगती है, बहुत सिंपल लगती है, और यही जो दिमाग है वो धोखा खा जाता है. Mind is used to do MBAs and PhDs and postdocs. उसके दिमाग में ये पड़ता नहीं है कि इतनी छोटी सी दिखने वाली चीज कैसे कुछ कर सकती है. और यही कैच है. This is the catch. So if I make this my mantra for life, like a fool, like a mad, actually you have to become mad for peace, you know. ऐसे नहीं मिलेगी, क्योंकि बार बार दिमाग बोलेगा अरे इतनी छोटी सी चीज है, कोई शांति वांति नहीं आने वाली एक लाइन से. बट अगर आपकी कॉल में सिंसियरिटी है, अगर कॉल में डेप्थ है, अगर कॉल में एक परसिवरेंस है कि रुक नहीं रहे, चाहे 10,000 बार फेल हो गए लेकिन अभी भी बुला रहे हैं, तो सूनर और लेटर नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम हैविंग पीस इन द होल बीइंग, इंक्लूडिंग द माइंड एंड इमोशंस एंड द बॉडी. And I will come to you very soon. I will come why I am talking about peace, what to do with that peace in the body. I'll come to that. Okay. So mother is saying that now I have to imagine that my whole being is full of calm and full of peace. कैसा फील होता है, अनुभव कैसा रहता है बॉडी में अगर इस समय full of stillness and peace है, कैसा अनुभव रहेगा. अगर इस समय मेरा दिमाग विचारों की परेशानी में नहीं है, इस समय मेरा दिमाग एक बिल्कुल स्थित प्रज्ञ कंडीशन में है, कैसा रहेगा, मुझे कैसा अनुभव होगा. यू हैव टू इमेजिन दैट, विजुअलाइज इट. ओके. एंड कीप ऑन सेइंग इनसाइड, यू नो, पीस, 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 पीस. And imagine that now it has come to you, and when it comes to you, how does it feel in the body when it is full of, brimming full of peace? How does it feel? Okay, so that visualization has to be done. Now further, mother says, warns us actually. Mother says, do not look at the thoughts. This was the rejection that we had talked of earlier. You know, हमने बोला ना reject करना है. बाहर से बहुत विचार आने की कोशिश करेंगे, बाहर से बहुत इमोशन ऊपर से नीचे उथल पुथल करेंगे कि अरे ये भी तो जरूरी है तेरे लिए. कुछ भाव नहीं देना उनको, ठक करके निकाल देना है. Do not look at the thoughts like a dumb fellow. मूर्ख बन जाओ बिल्कुल. हम बहुत ना क्लेवर हैं, हमारी जिंदगी इसलिए कॉम्प्लिकेट हो जाती है क्योंकि वी आर सो क्लेवर, वी आर सो स्मार्ट एंड मैनिपुलेटिव. And that is not us, that is the mind, you know, which we listen to all the time. So now we are not listening to the mind because mind has to be silenced. So what am I doing? I am saying बार बार whatever I am saying, I am not listening to my thoughts at all. विचारों को बिल्कुल भी महत्व नहीं देना, चाहे वो कितना भी महत्वपूर्ण विचार लगे. और आगे आके मैं ये भी डिस्कस करूंगी कि अगर विचारों को महत्व नहीं देते हैं, तब भी हमारे जीवन की जो सिचुएशंस हैं वो कैसे हल हो जाती हैं. परिस्थितियों में अगर सोचना विचारना पड़ता है, वो कैसे हल हो जाता है, उस पर भी आएंगे हम. ओके.
यू मस्ट नॉट पे अटेंशन टू एवरीथिंग दैट कम्स. किसी चीज को भी महत्वपूर्ण नहीं मानना उस समय में जब आप शांति बुला रहे हैं. When someone bothers you a great deal and you want to get rid of him, what do? You don't listen to him, right? This is what we do. You turn your head away from that person कि मुझे तेरी नहीं सुननी. ऐसा काम करना है थॉट्स के साथ और इमोशंस के साथ. बिल्कुल नहीं सुननी उनकी. Okay? So mother is saying you must not look at the thoughts. You must not listen to them. You must not pay any attention at all. You must behave as though they do not exist and then repeat all the time like an idiot, as we said, like a murk, dumb fellow who repeats the same things all the time. Peace, 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 peace. So this is what we have to do as much as possible throughout the day. Make it a point, I have made it a point for myself before sleeping. I actively call peace in my being, the whole body, each cell of the being. अंदर वाली आंख से देखिए अपनी बॉडी को. जहां जहां आपको लग रहा है ना नर्वसनेस चल रही है, वहां वहां हमने क्या कर देना है? शांति घुसेड़ देनी है. कर सकते हैं आप सब, हम सब कर सकते हैं. एक जना जो बिलियंस ऑफ अस, बिलियंस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, सब एक जैसे हैं, है ना? तो अगर एक ह्यूमन बीइंग कर सकता है, दूसरा भी कर सकता है. सो रुचिका जी इज सेइंग अगर हमारी बस हो गई है और हमारी गलती भी बहस अच्छा नहीं, तब भी कुछ नहीं सोचना. यस यस रुचिका जी, कुछ नहीं सोचना, नहीं सोचना. हमको ना हमारी जो टीचिंग और ट्रेनिंग रहती है ना, एजुकेशन रहती है, जो हमारा स्कूल का सिस्टम है, उसमें ना सोचने पे बड़ा महत्व दिया जाता है कि सोचो सोचो, खूब दिमाग लगाओ. उसको एक बड़ा ऊंचा दर्जा दिया जाता है ना? गलती हो गई है तब भी नहीं सोचना. मैं बताती हूँ क्या करना है. आगे हम उसी की बात करेंगे कि क्या करना है. देखिए, गलती हो जाती है तो हम सोचते किस तरीके से. हमारा सोचने का तरीका भी तो बहुत छोटा है ना, क्योंकि मैं एक लिमिटेड इंसान हूं, एक पर्सन हूं, एक ईगो हूं. तो मेरा सोचने का फ्रेम एक चार दीवारी रहता है. कोई नया आंसर नहीं आता मेरी जिंदगी में, वही रिपीट होते रहते हैं पुराने आंसर्स. अगर हमको अपनी जिंदगी को ओपन करना है एक नई ग्रेस के लिए, अ न्यू लाइट टू डॉन अपॉन, अ न्यू लाइफ टू बिगिन, दैट इज वेयर आई हैव टू कॉल पीस. अब होगा क्या? आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा. The more I become capable of stilling myself, the more I am becoming capable of receiving more divine guidance, more intuitions, more insights. क्या फायदा होता है? देखो, intuitions और insights की एक बहुत विचित्र सी बात होती है. वो हमेशा चार दीवारी से हटके होती है. वो हमारे ढर्रों में नहीं चलती. intuition और insights वो कुछ नया आंसर हमें देके जाती है. सो इफ आई हैव टू ओपन माई लाइफ टू अ न्यूनेस, स्टेगनेंसी आ जाती है ना लाइफ में. इफ आई हैव टू ओपन माई सेल्फ, माई लाइफ टू अ न्यूनेस, देन ओनली आई कैन वर्क ऑन माई सेल्फ बीइंग स्टिल. अगर मुझे अभी पुराने ढर्रे चलाने हैं तो चलाओ, किसी ने मना नहीं किया. अगर पुरानी जिंदगी बहुत खुशमिजाज लग रही है, चलाइए. ये तो उन लोगों के लिए है जिनको एक नई जिंदगी की तरफ कदम बढ़ाना है और एक्सपेरिमेंट करना है. ये उन लोगों के लिए है. ठीक है? तो हम क्या कर रहे हैं, इमेजिन कीजिए एक वाटरफॉल है, बहुत स्ट्रॉन्ग वाटरफॉल है, और उसको नीचे पड़ना है, कहीं जाना है उसको नीचे की तरफ, और एक कंटेनर है नीचे. अगर वो कंटेनर बहुत ही एक कमजोर कंटेनर है, बहुत कमजोर, तो क्या होगा? क्या वो वाटरफॉल का वेग सह पाएगा? उसकी फोर्स सह पाएगा? टूट जाएगा, चकनाचूर हो जाएगा. नहीं सह पाएगा. यस रुचिका, नहीं सह पाएगा. मैं क्या कर रही हूं? बाय कॉलिंग पीस इन द बॉडी, व्हाट एम आई डूइंग? आई एम मेकिंग दिस कंटेनर वेरी 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 सॉलिड, वेरी सॉलिड. इतनी सॉलिडिटी ला रही हूं मैं इसमें
कि चाहे कितना भी कुछ डिवाइन ग्रेस चमक जाए, लाइट, लाइफ फोर्स आ जाए, मैं हिलूंगी नहीं। और उससे क्या हो रहा है, मैं पात्रता हासिल कर रही हूं, मोर इंट्यूशंस, मोर इंसाइट्स फॉर द डिवाइन टू वर्क थ्रू मी, कि भगवान अपना काम मेरे थ्रू कर पाए। इस जीवन को, जो मेरा ये जीवन है, मनुष्य जीवन, उसको एक कुछ तो मूल्य मिले, उसका कुछ तो मूल्य हो। अभी तो मैं व्यर्थ गवा रही हूं जीवन को। जब बांसुरी की कब मोल होता है बांसुरी का, जब कृष्ण फूकते हैं उसमें। yes Diana, I will touch upon that. Yeah, thank you for sharing. तो बांसुरी का मोल होता है तब जब कृष्ण उसमें सांस फूके, नहीं तो पड़ी है कोने में, घास में पड़ी है बांसुरी, गंध भरा हुआ है अंदर, क्या फायदा। तो हम क्या कर रहे हैं, हम बांसुरी रूपी जो हमारी एक ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बॉडी हमें दी गई है, हम सबसे पहले उसमें से कचरा निकाल रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं, नेति नेति कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं, ये विचार नहीं चाहिए, ये इमोशन नहीं चाहिए, बहुत मैंने घूम लिया ऊपर नीचे, ठीक है, नेति कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं, कचरा नहीं आने दे रहे अब बाहर से। साथ के साथ हम पीस को आमंत्रित कर रहे हैं, शांति को, जो उस बांसुरी को खाली रखेगा, सुंदर रखेगा। अब इस खालीपन में, इस सुंदरता में कृष्ण अपनी सांस फूंक सकते हैं, क्योंकि मैंने तैयार की बांसुरी कृष्ण को बुलाने के लिए। अब क्या होगा, जो रुचिका क्वेश्चन पूछ रही थी, मैंने गलती करी, ठीक है, मुझे आंसर चाहिए कि मैं आगे कैसे बढ़ूं, है ना। यही तो होता है ना कि हमें आंसर चाहिए कि आगे का रास्ता क्या हो, दिखाए भगवान। अगर भगवान से आंसर चाहिए रुचिका, तो हमें अपने आप को स्टिल करना पड़ेगा, शांत करना पड़ेगा, तब आंसर देते हैं। शांति में आता है भगवान का आंसर। भगवान का आंसर नॉइस में नहीं आता, बड़ी धीमी आवाज है भगवान की। ईगो की बहुत स्ट्रांग आवाज होती है ना, ईगो को तो चिल्ला चिल्ला के बोलना पड़ता है, मैं हूं मैं हूं। भगवान को बोलने की जरूरत नहीं है, वो तो हर जगह है, ठीक है। तो जब अगर मुझे अपनी ईगो के डोमेन से ही आंसर चाहिए अपनी प्रॉब्लम का, तो मुझे शांति की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर मुझे इंट्यूशन और हायर माइंड, हायर फोर्स से अपना आंसर चाहिए, समथिंग न्यू टू डॉन अपॉन इन लाइफ, इन माय लाइफ, देन stillness is very important, because there that waterfall now can dawn upon in a container which is very still, which will not move by a lot of light, which will have the capacity to contain that light and to manifest that light, है ना। उसको एक्शन में भी तो लाना है, उस लाइट को, जो लाइट मुझे भगवान ने दिखाई, उसको मुझे एक्शन में भी लाना है। वो मैं तभी कर पाऊंगी, अब मैं एक छोटी छोटी बात पे एक्साइट ना हो जाऊं। बहुत एक्सपीरियंसेस होते हैं स्पिरिचुअल डोमेन में, हर एक एक्सपीरियंस को अपना तमगा बना लेंगे तो इसका मतलब मैं बार बार हिल रही हूं। इन दैट स्टिलनेस, इन दैट पीस, स्पॉन्ज ऑफ पीस, इमेजिन कीजिए कि पीस एक स्पंज की तरह है, जो सोक कर लेता है वाटर को। जो भी एक्सपीरियंसेस आते हैं मेरी जिंदगी में, द मोर पीस आई कॉल इन माई बॉडी, द मोर आई गेट द ग्रेस to receive all those experiences that the divine grants me with in grace. Not to become very excited about each experience and shout over the top of my voice, this is the experience, this is what I have, and make it a thing on your certificate, make it a part of your ego. So bichare, you kind of interrupt the flow of the divine grace if you put it on the ego. Okay, so this is what we are doing, that if I want my answers, my resolutions in my life from a higher domain, from a different perspective, from a larger perspective, divine's perspective, then what do? I make myself absolutely still, so that the waterfall of answers, waterfall of resolutions now can fall into that container. Okay, yeah. Yes, Shrija, I'll take your question soon. Yes. So next one is from Diana. She's saying, please could you summarize how to bring peace in every cell of the body? So Diana, the first thing is that I must intensely want it. Whenever we want something to happen, sooner or later it happens.
Okay, so I have to continue wanting it, and along with that, I have to have an inner eye all the time throughout the day. I am engaged in external conversations, I am engaged in my office work, I am engaged in all the things that I do throughout the day. Throughout the day, as if there is an internal eye within my being which is watching all the movements in the being. This eye will exert the force of peace on the being. Free will, Ichha Shakti in Hindi. So once I know that I want peace in each and every cell of my being, जैसे ही हल्की सी भी movement होगी, the moment I am feeling a little bit of disturbance, immediately as if I plug its mouth by putting this, sponge of peace in the cells. You actually have to do that, जैसे छोटे बच्चे के मुंह में निपल डालते हैं ना, छोटा बच्चा दूध पीता है बॉटल से, उसके मुंह में निपल डाल देते हैं, चुप हो जाता है. We actually have to do almost like that. And again, just to tell you again and again, it is a suppression, yes, but it's a very knowledgeful suppression. It is a suppression of my own experience, because it is coming from my experiences that I have seen 30 and 40 years of my life, and I have seen myself move up and down and being thrown away by all these emotions and thoughts and all that. And I don't want that anymore. So you plug the mouth. And this brings peace. And this is a very active peace, as if you are injecting it in the cells. Do it like that, whenever you are visualizing. Imagine that you have actually an injection in hand, full of peace, equanimity. How would your cells behave if peace is injected in the cells? Imagine that state. Use your visualization. All the time we are visualizing things, no? We are visualizing things about past, future, क्या होगा आगे जाने वाले सालों में, वो क्या कर रहा होगा अपने घर में. We are visualizing, we know how to visualize. So what do? We visualize, but now we visualize for our own good. What is the good? I want peace in each and every cell of my being. This is the way I want to choose for me now, right? Yes, Taru. So Taru is sharing that it seems that if we start calling peace and stillness as a part of a regular day, yes, and not wait for the time when I am really suffering. Not at all. तब कर नहीं पाएंगे, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे. I would be able to easily access this, yes, when I get thrown in chaos or disturbance. Yes, Taru, exactly. Then it can become a natural state. Yes, as we were discussing, दुख में क्या कहते हैं, सुख में सुमिरन ना किया, दुख में करते याद, कहे कबीर तादास की कौन सुने फरियाद. सो कबीर कहते हैं तुमने सुख में तो सुमिरन किया नहीं, जब तुम्हारी बॉडी बिल्कुल ठीक हालत में थी, दिमाग बिल्कुल ठिकाने पे था, सो कॉल्ड ठिकाने पे, कर सकते थे प्रैक्टिस. सुख में तो तुमने सुमिरन किया नहीं. अब घना दुख आ गया, अब तुम्हें वो पता ही नहीं है, क्योंकि वो मसल की जिम ही नहीं कराया उस मसल को. अब उस मसल को यूज कैसे करोगे? दुख में करते याद, कहे कबीर तादास की कौन सुने फरियाद. नहीं होगा, फिर बिल्कुल भी नहीं होगा. So yes, I have to make it a way of life. I have to make peace a way of life. Only then the challenging conditions, when they come, they bring me even more deeper depths, because there I am able to touch depths of peace and choose from higher guidance what to do about that situation, rather than operating from a zone of ego, a domain of ego, right? So Shrija Debroy is asking how to reduce negativity. Okay. Yeah. So Shrija, negativity is coming from outside. Okay, as we discussed earlier, all the thoughts, emotions, all the so-called negative things come from outside. Once I decide, now this central decision is very important. Once I decide for myself there is nothing else important in my life than peace, then only I can reject that negativity from entering my thought,
and entering my emotions and the body. अगर कहीं ना कहीं मेरे को ये विश्वास है कि इस सो कॉल्ड नेगेटिविटी से मुझे फायदा है, मुझे सोचना चाहिए इसके बारे में, मैं वो नहीं कर पाऊंगी, उसको रिजेक्ट नहीं कर पाऊंगी. तो आपको ही कन्विंस होना पड़ेगा. You will have to get convinced that yes, now peace is what I want as a way of life, and I don't want any negativity to touch me. So what will I do? I'll be able to reject it. So if you are asking me what to do about negativity, one has to reject it continuously. Because now what matters for me is peace. I don't want negativity in my life. I have had enough. This is the experiment that I want to do in my life. So yeah, this is what Shrija, please ask if anything is not clear or if you want to ask further anything. So Gurpreet ji is saying, by plugging you mean we invoke it there and then. Exactly, yes, we plug it with peace. Yes, we write there. The moment I see a disturbance in me, the moment I see, two kind of ways are possible. One way is that I try to resolve a confusion in life in the mental domain. मैं विचारों के तल पे, विचारों के तल पे मैं उसको सोचने समझने लग जाऊं, सुलझाने लग जाऊं. एक तो ये तरीका है. ये तरीका मेरे काम का तो नहीं है, एटलीस्ट मुझे, मोनिका को पता लग चुका है मेरे काम का ये तरीका नहीं है. ठीक है, मेरे में इतनी समझ नहीं है कि मैं क्वेश्चन को अच्छे से सुलझा पाऊं, अपनी जिंदगी की पहेली को सुलझा पाऊं. मेरे में वो समझ नहीं है. वंस आई एम कन्विंस्ड दैट मेरे में वो समझ नहीं है, अब मैं क्या करती हूं, अब मैं उसको उसी समय, जैसे ही मेरे को एक डिस्टर्बेंस, कंफ्यूजन फील होता है, द मोमेंट आई कॉल पीस विच आई हैड बीन प्रैक्टिसिंग इन माई लाइफ. आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग मोर काम, मोर स्टिलनेस. ठीक है, इमेजिन कीजिए एक घना सुनामी आ रहा है, बहुत जबरदस्त सुनामी, और एक पेड़ है, और वो पेड़ क्या कर रहा है, जादुई पेड़ है. जैसे जैसे सुनामी की जो गति है वो बढ़ती है, जैसे जैसे सुनामी की वेव्स एक बड़े बड़े छपाके मारती हैं, ये पेड़ जो है, जो जादुई पेड़ है, वो क्या करता है, वो अपनी रूट्स और डीप करता जाता है. वो सुनामी से लड़ने की कोशिश नहीं कर रहा. ऊपर से देखोगे तो लगेगा कुछ नहीं कर रहा है, क्या ये तो झल्ला पेड़ है, ऐसे लगेगा ऊपर से. ये तो भाग, लोग बोलेंगे उसको भागता क्यों नहीं है. उस पेड़ ने अपना अंदरूनी काम करना शुरू कर दिया है. वो भाग नहीं रहा, उसको नहीं भागना. उसने सुनामी नामक ट्रिगर को, जो बाहरी डिस्टर्बेंस का जो ट्रिगर था, वो बताने क्या आया था, वो बताने ये आया था, हे अपनी जरा जड़ें अंदर गहरी करो. उसने वो बात सुन ली, उसने उसी समय काम शुरू कर दिया. कोई भागने बचाने की जरूरत नहीं पड़ी. हम बहुत भागते बचाते हैं ना अपने आप को भारी सिचुएशन से. तो हम क्या करते हैं, हम बहुत बचाते हैं अपने आप को. हमने बचाना नहीं है, हमने उसको एक ट्रिगर की तरह लेना है, सुनामी को, कंफ्यूजन को, बाहरी सुनामी को, जो भी बाहर से इंसल्ट रूपी सुनामी आया, कोई आर्ग्यूमेंट, कंफ्यूजन रूपी सुनामी आया, और उस ट्रिगर को लेके हमने अपनी रूट, जो जड़ थी, हमने वो और गहरी कर दी पीस में, और अंदर चले गए, और भीतरी तलों को टच किया अपने अंदर. ये काम करना है. Immediately I feel a movement in my being. I plug it with peace. I fill it up with peace. And then, friends, answers come. Resolutions come. They will not be the resolutions that a mind can find. Only a silent and a quiet mind can find resolutions, and can in fact be gifted with resolutions which are of beautiful nature. क्योंकि वो हमारे तल के कहीं दूसरे तल से आ रहा होता है वो आंसर. हमारी चार दीवारी से वो आंसर नहीं आता. ओके, so Taru is asking, we love God and he knows what all we are going through. He knows for sure. Then why won't he give us peace when we need it? When we need it
Won't it naturally dawn on us? Why is an effort required? If we are not getting it on its own, maybe we don't deserve peace. Okay, Taru, I have a question at you on this. Have you done anything in life which did not require any effort? Think about it. It may be a very minimal effort. देखो, पानी भी पीने जाना होता है तो पानी के लिए उठना पड़ता है, right? So when you say that he won't give us peace, no, he won't, because if I keep on giving my child everything on the bed, my child becomes incapacitated, my child becomes handicapped, my child does not recognize the strength that is hiding in him. So I won't do this torture on my child to provide him with all that he needs on the bed. I must be really a cruel God if I am giving you all that you need on the bed. So I want you to make effort, because when you make effort, you discover something new in you, and that joy I want to give you. This is what God is saying. That, hey, when you will get up from your bed to fetch water, a glass of water, maybe you meet a friend on the way. Maybe you find something on the way which you had been looking for. So I want you to get up, and I want you to feel that strength, how it feels in the legs when you get up all by yourself and go and get a glass of water. So what I do is I give you that seeking. This is how divine grace enters our life. So when you saying dawn, seeking dawns in life. This is the greatest gift God grants us, that we begin to seek. If I don't seek, how will my thirst be ever quenched? And God also wants furthermore. He only does not want कि इसकी सिर्फ प्यास शांत हो जाए. No, I am not satisfied there. I want you to discover something new for yourself, which is that strength. You discover, oh my God, मेरे को तो पता भी नहीं था कि मैं खुद उठ के पानी भी पी सकती हूँ. Wow, that is something really great. अगर पानी पी सकती हूँ तो इसका मतलब वो भी कर सकती हूँ. चलो वो भी एक्सपेरिमेंट करती हूँ. अगर वो कर सकती हूँ तो इसका मतलब वो भी कर सकती हूँ. चलो वो भी एक्सपेरिमेंट करती हूँ. And slowly we develop this inner strength, which cannot be granted to us for free, because it will be a dull life. It will not be a life full of discovery and adventure. And dullness, why is life there if only dullness has to exist? Nobody of each one of us, does not enjoy dullness. We enjoy discovery in life. We want new things in life. So feel free to ask more, Taru, if you're okay. The next one is how to cut off this thought of doubting ourselves always in every new changes that is happening or which we make in life. So you're talking about self-doubt, Srija. So again, as we said earlier, that negativity has to be discarded. The same way, if now peace and discovery and adventure is the biggest thing in my life right now, if I know that this is most important, then I will have to discard, reject doubt, because doubt is nothing but a thought coming from outside. It's nothing actually. If you look at it, you will see that you can easily reject it. See, दो तरीके हो सकते हैं. एक तो ये है कि मैं एक्सपेरिमेंट करके देखूं कि मैं अगर डाउट को फॉलो करती हूँ, सेल्फ डाउट को फॉलो करती हूँ, तो मेरी जिंदगी का क्या हाल होता है. करो, ट्राई करो. दूसरा ये तरीका है, आई रिजेक्ट दैट डाउट. तब मैं कैसा तरीका लेती हूँ लाइफ में, तब मेरी जिंदगी में क्या चेंज होता है, क्या बदलाव होता है. अगर मैं सेल्फ डाउट को रिजेक्ट कर देती हूँ, आने ही नहीं देती उसको अपने थॉट के डोमेन में, तब कैसी जिंदगी होती है. एक्सपेरिमेंट इट फॉर योरसेल्फ. See where you feel right. Look for yourself, We all have studied this much that we know how to do experiments in life. We are not just robots
कि सेल्फ डाउट आया और उड़ा के ले गया और हमारे पास कोई शक्ति नहीं है कि उसको रोक पाए? अगर ऐसा है तो बात नहीं गलेगी, दाल नहीं गलेगी. So what do I have to do? I have to experiment both these ways. पहले सेल्फ डाउट दिखा, आ रहा, पहले मुझे उड़ा के ले जाता था. अब क्योंकि मेरी जिंदगी में शांति बहुत जरूरी है, डिस्कवरी बहुत जरूरी है, what do I do? Now I have started to reject it and trying to see what is this new way of life which exists without self doubt. Is this making me feel good, feel right? Follow it. If the earlier way was better, follow that. Very simple. Yeah. Taru, would you like to further question on what you had asked, or maybe I misinterpreted? Yeah. Okay. 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 So again, inviting you asked to keep asking, and whenever there is anything, just type and or unmute and share. Yeah. So I'll go further, talking about disease, fear, and panic. We all have tasted these things in life, some or the other kind of disease. Fear of being ill. किसी फ्रेंड को कोविड हो गया तो तुम्हें लग रहा है मेरे को भी हो जाएगा. Fear, we have all gone through that. Panic, anxiety. अब देखिए करना क्या है. अगर मुझे जीवन में एक नया जीवन शुरू करना है, मुझे अगर, तो मुझे पुराने हथकंडे तो छोड़ने पड़ेंगे. अगर मैं अपने आप को कहती हूं मैं, तो मेरी अपनी जिंदगी पे कुछ तो कंट्रोल होना चाहिए. नहीं तो मैं वो उसको अपना कह ही कैसे सकती हूं? जिस चीज पे मेरा कोई हक नहीं, जो चीज मैं अपने हिसाब से चला नहीं सकती, मेरी इच्छाएं मेरे को चलाए जा रही हैं, कोई भी विचार आता है उड़ा के ले जाता है, कोई इमोशन आता है ऊपर नीचे करके धक्का देके चला जाता है, मैं गिर जाती हूं नीचे. अगर ऐसा कोई भी कंट्रोल ही नहीं है मेरी जिंदगी में, तो ये मेरी जिंदगी हुई कैसे? मैं इसको अपना मानूं कैसे कि ये मेरी है? ओके, सो व्हाट डू आई हैव टू डू? If I now want to have a kind of a mastery in life over my movements, I will have to exert a bit of control over these movements. So if a doubt comes, reject it. You don't want it. Put your energy in something which is positive. Do something which detoxifies you. Don't go there. हमें लगता है, देखो हम क्यों जाते हैं, हम विचारों के डोमेन में हम इसलिए जाते हैं क्योंकि हमें लगता है वहां पे आंसर मिलेगा. सिंपल सी बात है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं है. मुझे लगता है अगर मैंने सोचना, विचारना, इमोशंस में जाना बंद कर दिया, दो चीजें लगती हैं. एक तो मेरी जिंदगी डल हो जाएगी, जैसे कि अभी तो बड़ी खूबसूरत है, हाँ. और दूसरी ये चीज लगती है मेरे को कि मेरी जो मतलब जो मेरे आंसर्स हैं, मुझे वो कहां से मिलेंगे अगर मैं सोचूंगी नहीं. Now one, again, as we will experiment, as you all will experiment, you will see the more quiet my mind is, the better and beautiful the answers are. This is a mystery. How is this possible? मेरे को तो स्कूल में सिखाया गया है कि सोचो, और ये बड़ी अजीब सी बात है कि दिमाग को चुप कराओ और फिर आंसर मिलेगा. बहुत अजीब बात है ये तो. अब ये आप अपने लिए एक्सपेरिमेंट कीजिए कि इसमें कितनी सच्चाई है. आप खुद देखिए, मैं तो अपना एक्सपीरियंस बता रही हूं. तो हमने कुछ नहीं करना. द मोमेंट आई सी कंफ्यूजन इन माई लाइफ, आई एम कन्विंस्ड दैट I will not find an answer in my domain of the mind. I will not find a resolution of my emotions in the domain of emotions. What do? I become absolutely quiet. Nothing moves in my being. Like a dumb fellow who knows nothing how to think about things, who has no feelings, no emotions. Absolutely dumb. And then you are given answers. Try, experiment. Don't believe it as a theory.
There is no, we have believed in so many theories. Our bookshelves are full of books, theories and theories of books. Do this practical. Figure it out. Where do I work better? When I am exercising my mind, or when I am having a quiet mind which serves as a receptacle, as if कि एक कटोरा हो खाली, बहुत ही सॉलिड कटोरा, अब उसमें ऊपर से आ रही है भगवान की जो देन है बढ़िया से, और क्योंकि वो भारी है देन तो कटोरे को स्टिल होना पड़ेगा. हिलता रहेगा कटोरा तो कहां डालेगा भगवान? हिलना नहीं है बिल्कुल. लेते जाओ, थैंक्स बोलते रहो और लेते जाओ आंसर्स, और अपने आप को सॉलिड बनाते जाएं. So this is what we have to do. Very simple, it is so simple that it boggles the mind. सहज रास्ता है ना, कबीर का मार्ग सहज है. कबीर ने कोई फिलॉसफी थोड़ी ना की थी, PhD in philosophy. No degree is required. In fact, degrees become an hindrance in between. क्योंकि दिमाग इतना चलने को उतारू रहता है, कहता है मैं कैसे चुप हो जाऊं यार, 50 साल चलाऊं. देखिए 50 साल 40 साल जो हम चले हैं, अगर हमें वो मिलना होता तो हम आज यहां नहीं होते. अभी नहीं मिला है तभी हम सीख कर रहे हैं. इसका मतलब 50 साल 40 साल के हथकंडे अभी काम नहीं आए, तो तरीका तो चेंज करना पड़ेगा. और तरीका वही चेंज कर पाएगा जिसको अब आग लगी है कि मेरे को मिल जाए. जब भी हमें किसी चीज की आग लगती है, हमें वो मिलता ही मिलता है. चाहे वो एक इंसान है, चाहे एक जॉब क्यों ना हो, चाहे कुछ और हो, मटेरियल चीजों को ले लीजिए आप. जब भी हमें आग लगी है पूरी, तब हमें मिलेगा. तो पीस की, शांति की एक ललक होनी चाहिए, उसका टेस्ट डेवलप करना पड़ता है. वन हैज टू गेट, जैसे कोई नया आपको कुछ टेस्ट कराए, कोई डिश टेस्ट कराए, आपने पहली बार चखी, आपको नहीं है टेस्ट उसका, इतनी हेल्दी डिश है कि आपको उसका टेस्ट ही नहीं है. आपको कचौड़ी समोसे जलेबी बहुत अच्छे लगते हैं तले भुने, तो क्या होता है, अगर आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, हम क्या करते हैं, हम धीरे धीरे उसका टेस्ट डेवलप करते हैं. और पीस तो ऐसी चीज है जिसका टेस्ट सबको है, बस भूले बैठे हैं हम. सो स्लोली एज आई डेवलप this taste for quietness, stillness and peace in the body, emotions and being, slowly then peace becomes a way of life. अब क्या होगा, अब जैसे ही हल्की सी भी डिस्टर्बेंस होगी तो मुझे उसी समय पता लग जाएगा, हे मोर एफर्ट नीडेड. और अभी कहां हूं मैं, अभी यहां हूं कि थोड़ा थोड़ा आइडिया है कि पीस पता है अच्छी होती है, जरूरी होती है, बट डिस्टर्बेंस बहुत है लाइफ में, और चाहिए और चाहिए. हाँ, तो यहां से हमें वहां मूव करना है. बिना चाहे कुछ नहीं हो सकता, चाहना पड़ेगा, प्यार करना पड़ेगा शांति को. जब हम किसी चीज को प्यार करते हैं ना, तब हमारे नजदीक वो आना चाहती है. हम किसी से घृणा करते रहें, हमारे नजदीक क्यों आएगी वो? उसको हमारी शक्ल पे ही घृणा दिखेगी, वो नहीं आएगी हमारे नजदीक. So if we really want to invite peace in life, I will have to fall in love with peace. I will have to give it the most priority in life. I will have to leave my ego aside, leave all the arguments aside, and say to myself, nothing matters on this earth than peace. And then the magic of peace begins. Yeah. Then the magic of peace begins. So if we all want magic in life, if we all want some newer rasa in life, some divine flow in life, this is the experiment we all can do. Right? So anything up till here? Anything from you?
any practical challenges, or what we actually face from theory to real life. There is a lot of gap that happens. Anything that you have coming up right now? Great. Okay. So I will go ahead and maybe take a few more points from Sri Aurobindo. Oh, okay. So Sri Aurobindo says a silent mind is the first step towards true knowledge and the experience of the divine. मोनिका जी मेरा एक छोटा सा सवाल जी था मेधा जी कि जैसे ये सब जो भी हमको प्रैक्टिकली करना होता है तो उसमें संकल्प की बहुत बड़ी भूमिका होती है जी वो डिटर्मिनेशन की, संकल्प की तो कई बार क्या होता है, ये मैं देखती हूँ कि हमारी जो आधुनिक जिंदगी है जी उसमें संकल्प करने की जो क्षमता है हमारी कम हो जाती है। जैसे हमको पीस के लिए ही काम करना है, हार्मनी के लिए ही काम करना है, इसके लिए तो वो संकल्प को कैसे मजबूत कर सकते हैं? अगर मैं हो और आपकी इच्छा हो तो थोड़ा सा इस पे जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो बिल्कुल बोलूंगी थोड़ा सा इस पे। थैंक यू। तो हाँ जी, तो देखिए इमेजिन कीजिए कि मुझे कहीं जाना है। हाँ, इमेजिन दैट आई हैव टू गो समवेयर and I know that it is very very important for me to go that place, go to that place. क्या मुझे वहां के लिए संकल्प करने की जरूरत पड़ेगी? सोचिए, आप सब सोचिए बैठ के। कोई बीमार पड़ा है, बहुत ही करीबी है मेरा, क्या मुझे संकल्प करने की जरूरत पड़ेगी कि मैं उसके पास जाऊं? क्यों नहीं पड़ेगी संकल्प करने की जरूरत इस सिचुएशन में? बिकॉज मैं नहीं दूंगी जवाब। क्यों नहीं पड़ेगी? अगर कोई बैठा हुआ है हॉस्पिटल में, बहुत बीमार है और मुझे पता है मुझे उसके पास जाना है, क्यों जाऊंगी मैं? क्यों संकल्प की आवश्यकता नहीं पड़ेगी? जी मेधा जी। मुझे लगता है कि एक तो उस व्यक्ति से बहुत प्रीत होगी, हाँ, और प्रेम होगा उस व्यक्ति से जी। और दूसरा कि मुझे लगता है कि जो इमरजेंसी सिचुएशंस होती है ना, उसमें हम कंपेल होते हैं एक्ट करने के लिए। तब मतलब उसमें ये भी नहीं होता है कि हाँ या ना के बीच में भी हम नहीं होते हैं। तो ऑटोमेटिक होता है, बिल्कुल इमरजेंसी के। हाँ, तो और हमारे लिए इमरजेंसी क्या है? हम किसे इमरजेंसी कहते हैं, उस पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए। मतलब कि जब कुछ कोई और विकल्प बचता नहीं है मेरे ख्याल से, तो क्या मतलब हम जिंदगी में, मतलब सवाल ये है कि क्या हम जिंदगी में उस वक्त तक का इंतजार करें कि जब तक हमारे पास कोई विकल्प ही ना हो इस रास्ते पे चलने के अलावा, या फिर हम वक्त रहते ही सचेत हो जाएं और संकल्प को इतना मजबूत कर लें कि बिना इमरजेंसी के हम काम कर सकें। जी, या फिर हम पीस को अपनी इमरजेंसी बना लें। हाँ, ये भी हो सकता है ना। ये सिर्फ मैं तभी बना पाऊंगी कि देखिए, कबीर जी कह गए हैं कि आपको कल का भरोसा नहीं है, अगले पल का भरोसा नहीं है, और साथ साथ ये भी कह गए हैं कि जिस स्थिति में तुम मरोगे उसी स्थिति में अगला जन्म शुरू होगा, ये भी कह गए हैं साथ में। तो क्या मैं इसी भसड़ वाली स्थिति में एक और जन्म लेना चाहूंगी? याद दिलाइए अपने आप को। देखिए, हमारे लिए पीस इमरजेंसी वाली सिचुएशन क्यों नहीं हो पाती है? इसलिए नहीं हो पाती है क्योंकि मुझे लगता है अरे शांति आ जाएगी, अभी तो 10 साल और जीना है, कोई बात नहीं, अरे पहले ये कर लूं, पहले वो उस बंदे का फंक्शन अटेंड कराऊं, शांति तो आती रहेगी, ये लगता है मुझे। मेरे को जब ये भी नहीं पता कि मेरे को अगले पल जीना है कि नहीं, मैं कैसे शांति को अर्जेंट नहीं मानूं? आप देखिए ना, हमारे लिए अर्जेंट होता क्या है? किसी ने शादी पे बुलाया है, आप ना नहीं कर पाते, बहुत प्यारा आदमी है, वो हमारे लिए अर्जेंट हो जाता है। बेशक उस शादी पे जाने के लिए मेरे को अपनी पीस का सत्यानाश करना पड़े, मैं करूंगी, बहुत प्यार है उससे।
तो जो अभी मेधा जी ने खुद अपने मुंह से कहा, प्रीत होगी उससे तभी जाना है. That is what I was saying. One has to develop a love for peace. We have to change our tastes. हमारे जीभ का स्वाद इतना खराब हो चुका है over the years, है ना? तो उसको हमने ठीक करना है, सुंदर बनाना है स्वाद को. एक बार स्वाद लग गया पीस का, फिर वो आपके लिए अर्जेंट हो जाएगी. जो आप अर्जेंसी की बात कर रही हैं, फिर आपको संकल्प नहीं लेना पड़ेगा पीस के लिए. जैसे कि दोस्त के शादी में जाने के लिए संकल्प थोड़ी ना लेना पड़ता है, पानी पीने के लिए संकल्प थोड़ी ना लेना पड़ता है, जरूरी है, करना है. That is, that kind of a priority when it becomes for me. Yes, all of you are saying, peace must become my top priority. Only then this new life can begin. Yes, Gurpreet ji. Yeah, Monica, I felt like saying this. I think more than the love for the thing, जैसे मेधा जी ने बोला कि प्रीत होनी चाहिए, I think you need to be convinced by the fact very much. True. Because ये जो बाहरी चीजें होती हैं, जैसे मान लीजिए हम किसी को मिलने जा रहे हैं, किसी की शादी ब्याह में जा रहे हैं, that is something जो हमारी सोसाइटी ने हमें convince किया हुआ है कि this is something very important in बहुत life. सुंदर, yeah. But nobody has ever taught us to see the other aspect of, the other dimension is never to be seen by us. Yeah. वो हमारी सोसाइटी में वो है ही नहीं, एजुकेशन है ही नहीं. So I think to begin with, convince होने के लिए you need to, जैसे ये सेशन है फॉर एग्जाम्पल, या हायर नॉलेज, जो हम जो भी चीजें पढ़ते हैं, जैसे आलोक दा भी बहुत बार मेंशन करते हैं कि नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट. नॉलेज होगी तो हम कन्विंस्ड होंगे, एंड देन मे बी वी कैन गो अहेड. बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत सुंदर गुरप्रीत जी, कि जब तक कन्विंस, देखिए ईगो क्या है, ईगो को कन्विंस करना पड़ता है ना? बिकॉज ईगो हैज बीन रनिंग माई लाइफ ऑल दीज ईयर्स, एंड नाउ if I realize the futility of efforts, only then I can come to a place where peace has the most priority. If I am still not convinced, as Gurpreet ji said, if I am convinced कि मेरी ही डोमेन में मेरे को सवाल जवाब मिलेंगे सारे, मेरे ही माइंड की डोमेन में ही मेरे को पूरी जिंदगी के आंसर मिलेंगे, अगर मैं कन्विंस्ड हूं, तो मुझे पीस के पास कोई नहीं ले जा सकता. कबीर कहते हैं, दौड़त दौड़त दौड़िया, जहां लगी मन की दौड़. खूब दौड़ा, जहां मन ने दौड़ाया, मैं हर जगह भागा. तो वो भागना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है वो भागना. एंड दिस इज व्हाट लाइफ एक्सपीरियंसेस आर फॉर. खूब दौड़ो, खूब भागो. तब जब क्या होता है, आगे क्या है, दौड़त दौड़त दौड़िया, जहां लगी मन की दौड़. दौड़ थके मन स्थिर भया. मन स्थिर कैसे हुआ? बिना दौड़े मन स्थिर नहीं था. दौड़ दौड़ के थक थक के जब कन्विंस हो गया मन की भैया वहां नहीं मिलेगा, द कन्विंस दैट गुरप्रीत जी सो ब्यूटिफुली शेयर्ड. अब मैं एक बार कन्विंस हो गई कि वहां नहीं मिलेगा, दौड़ थके मन स्थिर भया, तो वस्तु ठौर की ठौर. शांति कहीं से आनी थोड़ी ना है, खरीद थोड़ी ना सकते हैं शांति को. खरीदा तो हमने अशांति को हुआ है, उसको रिजेक्ट करना है. जो जो खरीदा है अब उससे विरक्त होना है, अपनी फकीरी में. और ये पैसिव शांति की बात नहीं कर रहे हैं हम, बार बार कहूंगी इस चीज को. इट्स नॉट अ पैसिव शांति फुल ऑफ इनर्शिया. इट्स एन एक्टिव शांति वेयर यू आर मेकिंग योरसेल्फ अ सॉलिड कंटेनर टू हैव द डिवाइन ग्रेस वर्क थ्रू यू एज एन इंस्ट्रूमेंट. अदरवाइज इस मनुष्य जीवन का कोई महत्व नहीं है. अगर जो भगवान ने हमारे थ्रू करना है वो नहीं कर पा रहा, हम जमे हैं रास्ते में बिल्कुल एक रोड़ा बन के, तो बात जमेगी नहीं, मजा नहीं आएगा, हमें खुद को मजा नहीं आएगा. हमें खुद पता होना चाहिए कि लाइफ में एक्चुअली में मजा कम हो रहा है, और जैसे ये पता लगे तो वापस सीकिंग बिगिन हो जानी शुरू हो जानी चाहिए. क्या है, कहां भूल हो रही है, राइट? So before we end the session, those of us who are new today and would like to be in touch, do share your phone numbers with us in the chat window, your name and phone numbers if you want to be in touch for the upcoming sessions. Okay. So Shrija is saying, many person I have seen who have achieved everything in life, still they aren't at peace. Why is it? Ask them. Ask them.
Ask yourself. Ask yourself. Yeah. ये मोनिका, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, सेशन खत्म होने से पहले क्या शेयर कर सकती हूँ? जी जी। जैसे सभी दोस्तों से आज जो जहाँ यहाँ इंटरेक्शन में है मौजूद, तो हम लोग सोचते हैं कि हम सब एक साथ इसलिए हैं शायद क्योंकि हम अपनी जर्नी को एक खास दिशा में मतलब एक तरह से डिवाइन जर्नी में कन्वर्ट करने की एक ड्रीम लिए हुए हैं। तो छोटा सा ये है कि जिस तरह से मोनिका कर रही हैं, हम लोग भक्तिवर्सिटी के थ्रू भी कुछ इस तरह का ही काम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो फेसबुक पेज है भक्तिवर्सिटी का, उसको जरूर विजिट करें। और कल हम लोग एक ये कबीरा खरा बाजार में कबीर के जीवन पे एक नाटक है, उसको प्ले कर रहे हैं अपने पेज पे, तो अगर हो तो जरूर देखें, अगर समय हो तो, इच्छा हो तो। थैंक यू वेरी मच जी। Yes. So yeah, just coming back to Shrija's question where she says that many persons I see who have achieved everything in life but not peace. So what is everything Himanshi is saying? If they have not achieved peace, can we say that they have achieved everything? So beautiful. Yeah. Yeah. See, it depends on us. आप ले लो वो सारी चीजें, तुम्हें चाहिए क्या, है ना? So it depends on us. It's totally up to our free will. As a human being, I have been granted with free will. What is free will? You want to have everything in life, you have everything. भरी पड़ी है पूरी जिंदगी everything से. You want to have peace in life, have peace. What do you want? The first question that we started with, that if we want to do this experiment, we must want peace. So if I want rest everything in life, we will have that in life. And if I want peace in life, I will have peace in life. What do I want? Right? So I think अब एक बात और शेयर करना चाहती हूँ। आप बहुत सुंदर से कह रही हैं, तो मुझे लगता है कि हम लोग सब लोग यहाँ पे हैं, वो एक ग्रेस का मामला है, क्योंकि ये जो सवाल है कि सब कुछ पाने के बाद भी शांति नहीं मिलती है और क्या वो, लेकिन ये एहसास भी होना कि हम अशांत हैं जी, और हम मतलब हमारा अधूरापन है हमारी जिंदगी में, और कोई एक और भी राह हो सकती है जो कि हमको एक ह्यूमन बीइंग के रूप में और फिर साथ में अपने अंदर की जो डिविनिटी है उसको मैनिफेस्ट करने का रास्ता दिखा सकती है। तो मैंने भी इस जिंदगी में एक्सपीरियंस किया कि बहुत बहुत ज्ञानी लोग हैं, बहुत बड़े मकाम पे पहुंचे लोग हैं, लेकिन उनके लिए ये रास्ता ही बिल्कुल बंद है अभी तक। और आप किसी तरह से कोशिश भी करें उस तरफ बात करने की, उस तरफ ध्यान दिलाने की, तो वो संभव ही नहीं होता है उनके लिए। तो मुझे लगता है कि हम लोग जो हैं बहुत ही लकी लोग हैं कि हमें रास्ता तो दिखा है, और रास्ता दिखा है तो मुझे लगता है कि जब इतना मतलब डिवाइन ग्रेस है हमारे ऊपर, तो हम भी थोड़ी कोशिश करें। और जैसा कि कहते भी हैं कि अगर हम एक कदम चलते हैं तो ईश्वर 4 कदम हमारी ओर आगे बढ़ाता है। तो जब हमारी मतलब किस्मत किस्मत हमारे दरवाजे पे खड़ी है, तो हमें लगता है कि दरवाजा खोल देना चाहिए। और इस तरह के सत्संग का बहुत महत्व है मोनिका जी, मैं रियली ग्रेटफुल हूँ कि ये हमको लगातार एहसास दिलाने का, लगातार रिमाइंडर करने का, क्योंकि पुराने जमाने में भी भक्ति काल में भी सबसे ज्यादा महत्व गुरु और सत्संग पे दिया गया है। तो मॉडर्न टाइम में क्या है, हम सब एक दूसरे के गुरु हो सकते हैं। मोनिका इतना सुंदर से बता रही हैं, हम में से कोई और दोस्त हो सकता है कि कोई और एस्पेक्ट पे बहुत सुंदर से बात कर सके। तो हम सत्संग के महत्व को समझें और बहुत ज्यादा से ज्यादा इसमें शामिल होने की कोशिश करें, इसको अपनी प्रायोरिटी बनाएं और एक दूसरे की इस जर्नी में हैंड होल्डिंग करें। और ये पूरी मतलब जैसे श्री अरविंद और माँ भी कहते हैं कि जब हम लाइट की तरफ बढ़ते हैं तो जितनी भी डार्क फोर्सेस होती है वो हमको नीचे पुल करने की कोशिश करती है। तो कई बार क्या होता है, जो हम
कोशिश छोड़ देते हैं, क्योंकि हमें अपने पे भरोसा खत्म हो जाता है, लगता है कि अच्छा मुझसे नहीं हो सकेगा। तो एक नॉन जजमेंटल स्पेस भी क्रिएट करना कि ठीक है, ये मोमेंट में डार्कनेस मेरे पर हावी है ना, लेकिन फिर हम आगे बढ़ेंगे। और वो जो मोमेंट ऑफ, जिसको श्री अरविंद कहते हैं, मैं बोल रही हूँ, आवर ऑफ गॉड कुछ, तो वो जो मुहूर्त है, वो मुहूर्त को बार बार हम ऐसे ही ला सकते हैं अपने जीवन में, जब डिवाइन हमारे थ्रू काम करना शुरू करेगा। तो रियली रियली वेरी ग्रेटफुल। मोस्ट वेलकम, थैंक यू उमेदा जी. So just last question I would like to take. Beautiful question. Shrija has said, I think people are confused what they really want in life, and that's why they aren't at peace. I think this is really beautiful, really beautiful. You know, and mother, Sri Aurobindo and mother, the mother says, an aimless life is a miserable life. We don't know what we want. And the moment I set a very little aim to my life, you know, Shrija, one aim can be very simple. Very simple aim can be there. I want peace in my life. At every moment, I want to give peace the most priority. And whenever I am going through a situation, then I can use this aim of my life in order to handle that situation. I will give you a very short last example. Imagine that I am going to enter into an argument with a person. And I remember immediately this aim of my life. What is the aim in my life? I want to have peace at all times. What do? Immediately, I'm going to enter that argument. अभी मैं 10 शब्द और कह जाती हूँ उस बंदे से. Because the aim of my life is peace and not to prove myself right, I immediately stop. I don't enter that argument. Now you have given peace more priority than argument or proving myself right. You have saved yourself of draining of energy. You know, again another situation will happen. Remind yourself of your aim. What is my aim? The aim is to have peace and shanti at each time. Will I still do this action? Will I still meet this friend? Will I still engage in this conversation if my aim of life is to have peace at all times? I will not. Use this. Make a little aim for your life, aim which is high enough, you know, which gives you clarity in life, and remember it as much as you can in day-to-day activities. Will I indulge in this activity if I want peace in my life? Which I indulge myself in the thoughts and emotions game if I want peace in my life? I will not. I will not. Yes, the aim must be strong enough. So for example, you know, this very little aim, the aim is peace at all times in my life. दिखने में बहुत छोटा सा लगता है, but it's strong enough for a lifetime. So just like that, we can make any aim for our life, and according to that, our life now begins to take shape. So those of us who would like to try this can experiment with this, you know, making an aim for yourself and then you know, experimenting with it, how it changes the quality of each activity when I pass each activity in front of this aim which I have made for myself. So with that, I'm grateful to have the session today with all of you, in the presence of all of you. And yeah, if there is anything, I'm happy to take it, or if you want to share anything. Yeah, thank you.